اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں پہ ایس آئی ڈی ایس ایل کی آفس اور اورنج لائن بی آر ٹی جو کہ ہم نے سندھ حکومت نے عبدالستار ایدھی مرحوم صاحب کے نام پر مخصوص کی ہے، اس کے ایک ایونٹ پہ موجود ہیں. اور آج کے اس پوری تقریب کا مقصد اور میڈیا کو بلانے کا مقصد کہ ایک گرین لائن کراچی میں بنی، اورنج لائن جو کہ کراچی میں بنی. اورنج لائن پیورلی 100% حکومت سندھ نے یہ بی آر ٹی لائن بنائی. یہ 2 بی آر ٹی لائن اس وقت کراچی میں ریڈی چل رہی ہیں. ان دونوں کے لائنوں کے بیچ میں ایک حصہ ہے جو کہ مسنگ ہے، جس کی ابھی تک انٹیگریشن نہیں ہے. تو اس کے لیے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ جو اورنج لائن میں سفر کر کے اورنج لائن کے آخری سٹاپ پہ اترتا ہے، پھر اس کو ایک آدھا کلومیٹر یا تو پیدل جائے یا کوئی رکشہ ٹیکسی کر کے جائے، اور پھر وہ جو ہے پھر گرین لائن جو ہے وہ اس میں سفر کرنا پڑتا ہے. تو وہ اس کو انٹیگریشن نہیں ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اورنج لائن بی آر ٹی کو کہ اب انٹیگریشن کرنے جا رہے ہیں. یہ اس وقت ٹیمپرری انٹیگریشن ہم نے شروع کی ہے، آج سے کرنے جا رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ اورنج لائن اپنی بی آر ٹی کے ٹریک پہ جائے گی. بی آر ٹی ٹریک سے جب اس کا ٹریک ختم ہوگا، وہاں سے پھر وہ نارمل روڈ پہ جائے گی اور گرین لائن کے سٹاپ پہ آپ کو چھوڑے گی. پھر وہاں سے پیسنجر جو ہیں وہ پیڈسٹل برج کے ذریعے جو ہے چڑھ کے پھر آپ گرین لائن کا سفر کریں گے. یہ جو ہم نے یہ جو ابھی ہم نے ارینجمنٹ کر رہا ہے، جو آج سے شروع کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گرمیاں بھی ہیں اور گرمی میں لوگوں کے لیے یہ آدھا کلومیٹر واک کرنا دھوپ میں بہت مشکل ہے، اور یا اگر وہ رکشہ یا ٹیکسی کریں تو وہ اور زیادہ مہنگا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ سروس شروع کی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 مہینے کے لیے. اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کی کمپلیٹ انٹیگریشن ہو جائے گی، اور جب کمپلیٹ انٹیگریشن ہوگی تو پھر آپ کو جو پیڈسٹل برج پہ آپ جا رہے ہیں سیڑھی چڑھنی پڑے گی، اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ ڈائریکٹ آپ کوریڈور میں جائیں گے. اورنج لائن کا اور پھر گرین لائن کا کوریڈور آپس میں مل جائے گا. لیکن اس میں 3 مہینے لگیں یا 4 مہینے لگیں یا 5 مہینے لگیں، تو اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیف کیا دے سکتے تھے، کیونکہ آلموسٹ 4 کلومیٹر کا اورنج لائن کا ٹریک ہے اور گرین لائن کا کوئی 21 کلومیٹر کا ٹریک ہے. تو اب جب یہ انٹیگریشن ہو جائے گی تو پھر کنٹینیوس آپ جو ہے جو ہمارا پیسنجر ہے وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ عوام کو ہر صورت میں ریلیف دینا ہے، عوام کی ہر صورت میں اس کی تکالیف سے اس کو ایز کرنا ہے. اسی لیے ہی حکومت سندھ، محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ اپنے چیف منسٹر کی ہدایت پر، پارٹی کی لیڈرشپ کی ہدایت پر ہر وہ اسٹیپ، ہر وہ کام کرے گی جس سے ہم پبلک کو میکسیمم ریلیف دے سکیں. کیونکہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو مزید بہتر کیا جا سکے. ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ روٹس نئے شروع کیے ہیں، کچھ بسز نئی شروع کیے ہیں، نئی بسز بھی پہنچی ہیں، ابھی مزید روٹس بھی ہمارے شروع ہونے جا رہے ہیں. تو یہی ہماری پرائورٹی تھی، اسی لیے آج ہم اس کا پبلک کے لیے یہ ٹریک کھولنے جا رہے ہیں. تو اب الحمدللہ پبلک کو نہ رکشہ میں بیٹھنا پڑے گا، نہ ٹیکسی میں بیٹھنا پڑے گا، نہ اس کے مسنگ ٹریک میں جو ہے لوگوں کو وہ گرمی میں واک کرنا پڑے گا. تو یہی اسی لیے آپ لوگوں کو وفاقی سرکار کی جانب سے دوسری مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی، لیکن خصوصاً پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ والوں نے کرائے بڑھائے ہیں، کم نہیں کیے. آپ کیونکہ اس کے صوبائی سربراہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ پیپلز بس سروس کے کرایوں میں بھی کمی ہوگی یا آلریڈی آپ کوئی سبسڈی دے رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اچھی خبر ہے جو کہ وفاقی حکومت نے جو پیٹرول کی پرائزز کم کی ہیں. جہاں تک حکومت سندھ کی کرایوں کی بات کی گئی، ڈیفینیٹلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹروں سے مستقل طور پر رابطے میں ہے، اور جہاں پہ ریٹ کم ہوں گے تو وہ بھی کم ہو رہے ہیں. ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جب ریٹ بڑھائے بھی گئے تھے نا پیٹرول اور ڈیزل کے، تب بھی جو 50 روپے کرایہ تھا وہ 50 روپے ہی تھا، اس کو کم نہیں کیا گیا تھا. تو
تو یہ چیز میں بالکل واضح کر دوں کہ ہم نے اس وقت بھی عوام کو ریلیف دیا تھا. ہم نے جو ہے پیٹرول بڑھے بھی تھے تو ہم نے کرایہ کو کمی بھی رکھی تھی, کرایہ کو ہم نے کسی میں بڑھنے نہیں دیا تھا. سب یہ بتا دیں کہ آپ کا جو جیالہ گورنر ہے اس کے دروازے نہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں بند کر دیے گئے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ آپ گورنر ہاؤس کو بھی ہم خالی کریں گے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں آج وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش ہونے جا رہے ہیں. تو کیا مستقبل کا سیاسی پس منظر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو کل حرکت خیبر پختونخوا میں کی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سوچ والے ہی افراد اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. اور چھوٹی سوچ کی ہمیشہ شروعات جو ہوتی ہے نا وہ لیڈرشپ سے ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں. کبھی برداشت کا ماحول نہیں سکھایا, کبھی ٹالرنس کی چیز نہیں دکھائی. وہ ہی ہمسیلف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہے. جس طریقے سے یہ کہا گیا کہ جی جو اسلام آباد میں گورنر انیکسی ہے یا گورنر کا جو پوزیشن ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے گورنر کے لیے, خیبر پختونخوا کے گورنر کے لیے, اور وہ جو ہے اب گورنر خیبر پختونخوا جو وہ کسی ہوٹل میں رہیں گے یا کہیں اور رہیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے اور گری ہوئی حرکت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اور یہ اس سے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی سوچ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ عمران خان نے آج دن تک کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جس کو کوئی سمجھدار شعور رکھنے والا شخص اس کو اپریشیٹ کرے. اس نے ہمیشہ عوام کو, پاکستانی قوم کو انتشار کی باتیں سکھائی ہیں, انتشار کی سیاست سکھائی ہے, لڑائی جھگڑے کی سیاست سکھائی ہے, گالم گلوچ کی سیاست سکھائی ہے, فیملیز کو میں پولرائزیشن کی سیاست سکھائی ہے, لوگوں پہ الزام تراشی کی سیاست سکھائی ہے, جھوٹ کی سیاست سکھائی ہے, پروپیگنڈاز کی سیاست سکھائی ہے, بدتمیزی کی سیاست سکھائی ہے. یہی اس نے کلچر انفارچونیٹلی پاکستان میں ایوالو کروایا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بری چیز کا برا ہی نتیجہ ہوتا ہے. آج وقتی طور پہ جو بھی اس کی پاپولرٹی پہ بحث ہو سکتی ہے, بٹ جو ایک آپ غلط چیز معاشرے میں پیدا کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے گلے میں ہی پڑتی ہے. جو آج اس نے چیزیں شروع کی ہیں اسی کے گلے میں پڑنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں یہ کیا گیا ہے اس پہ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پہ معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے وڈرا کرنا چاہیے. اچھا سر, یہ بتا دیں, میرے دو سوال ہیں. ایک تو ارباب صاحب نے کرایوں کی نشاندہی کی, لیکن ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے خاص طور پہ آٹے کی قیمتیں ہیں یا عام روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں, ان کے ریٹس کو کم کرانے میں بھی مکمل طور پہ جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے سندھ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ امن امان کا مسئلہ, اب 7 سال کے بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے سندھ حکومت. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں تک آپ نے ڈسٹرکٹ لیول کرایوں کی بات کی اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے آلریڈی ہم لوگ وہ کرتے ہیں. اس عید پہ بھی میرے خیال پچھلے 2-3 دفعہ یہ ہوا ہے کہ عید پہ بھی ہم نے کرائے کم کروائے ہیں اور ہم نے باقاعدہ ریٹس کیے ہیں. جو بسز کے لوگوں نے, بسز کے مالکان نے جو زیادہ کرائے لیے وہ ہم نے ان سے واپس کر کے ریفنڈ کروایا ہے. کبھی پہلے اس طرح نہیں ہوا کہ آپ پیسنجرس کو ریفنڈ کروائیں, ہم نے کروایا, اور سب چیزوں کا ہمارے پاس ایویڈنس اور ویڈیو ایویڈنس سب چیزیں موجود ہیں. سیکنڈ بات آپ نے کی لا اینڈ آرڈر کی. لا اینڈ آرڈر کے لیے بالکل کلیئر بتا دوں کہ حکومت سندھ, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ, جس میں وزیر داخلہ سندھ, آئی جی سندھ, پوری گورنمنٹ بہت سیریس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب خاص طور پر کراچی آئے امن امان کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ اب امن امان میں کافی اسٹریٹ کرائم میں بھی کافی حد تک نمبرز بہتر ہوئے ہیں, بہتری آئی ہے. سب ایک پیج پر ہیں اور سب کی یہ پرائرٹی ہے کہ ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے. نارکوٹکس پہ بھی جو کیمپین اس وقت حکومت سندھ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے, پورے پاکستان میں کہیں منشیات کے خلاف اتنی ایگریسو کیمپین آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. جس طریقے سے جو بھی ریسورسز ہیں اس کے باوجود ایکسائز کے آفیسرز, سندھ پولیس کے آفیسرز مل کر کوششیں بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے ریکٹس گرفتار کیے ہیں, ہم نے بڑی بڑی اس طرح کے منشیات فروش گرفتار کیے ہیں جس کا کسی کو علم بھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور ان سے مزید شواہد بھی ملے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ہم نے گینگ پکڑا ہے, اس کے تھرو مزید لوگ پکڑے ہیں. کچھ لوگ باہر سے آپریٹ کر رہے ہیں صوبے سے, ان کو بھی ہم پکڑیں گے. اور مطلب بہت اچھی ہمارے پاس اس میں لیڈز ہیں. اب تھوڑا اور مزید ٹائم لگے گا, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دے سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں رہے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ
मंशियात का यहाँ पे नामो निशान मिटा देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फरमाइएगा कि एक बस सर्विस के अंदर ऑटोमेटेड सिस्टम किराए का करवाया था, उसकी क्या अब तक रिपोर्ट आई है? क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसी हैं कि कार्ड बन गए लेकिन उनके जो कार्ड रीडर्स हैं जो बसों में लगे हुए वो अब तक काम नहीं कर रहे शायद। नहीं ऐसी, अच्छा ऐसी मैं उसकी कंप्लेंट। सेकंड ये बताइएगा कि जो ये ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन के साथ जोड़ने के लिए बाय ट्रैक जो एक मंसूबा शुरू किया गया था जिसके लिए 40 करोड़ की रकम भी शायद जारी हो गई थी, उसकी प्रोग्रेस कितनी है? और फिर ये जो रूट बढ़कर नागन चौरंगी तक जाना था उस पर कितना काम हो रहा है? देखिए पहली बात मैं बता दूं, आपने कही कार्ड की बात, कार्ड जो है वो हमने कहा था कि 2 में अब कार्ड बनना शुरू हो गए और विदिन 2 मंथ्स ये सारे ट्रैक्स पे चल जाएगा। सेकंड आपने बात की इन दोनों की इंटीग्रेशन के लिए टेंडर कर दिया गया है और इन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम दिया कि ये दोनों ट्रैक आपस में बिल्कुल मिला दिए जाएंगे। मैं फिर भी 1-2 महीने का मार्जिन दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब तक 5 महीने तक आवाम को मैं नहीं ख्वार कर सकता कि आवाम जो है वो गर्मी में एक बस से उतरे फिर आधा किलोमीटर इस गर्मी में आप वो आधा किलोमीटर चले फिर वो जाके वो करे, तो वो उसके लिए हमने इमीडिएटली रिलीफ के लिए इसको शटल स्टार्ट कर ली है। तीसरा क्या सवाल था आपका? बस 2 का एक मिनट भाई, पहले काजी साहब। अच्छा शिक्षक, अमूमन ये देखा गया है, पहले विकी लीक्स था, अब प्रॉपर्टी लीक्स है, तो सियासतदानों को बड़ा आसान हदफ बना दिया जाता है तस्वीरें तरबीत के बावजूद, लेकिन बशमूल सियासतदान और मीडिया भी रिटायर्ड जनरलों और जजों के नाम लेते हुए क्यों घबराता है? दूसरी बात कि ये जो अभी इनकी जमानत भी हुई है बानी पीटीआई की, खान साहब की, तो अंदरूनी खाना इन्होंने कोई माफी तलाफी का सिलसिला तो शुरू नहीं किया? इसी में इसी में ऐड कर लीजिए, दुबई लीक्स अब आ गया, आपकी तरफ से भी ज्ञान आ गया, आपने क्लियर कर दिया है, बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिन्हें तक क्लियर नहीं किया, आप तालबा करेंगे कि जो अच्छा समझ गया। अच्छा पहले मैं दुबई लीक से बात करूँ। इसकी एक वेबसाइट बनी है जो कि फॉरेन जो है कि नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने वेबसाइट बनाई है, उसमें अभी तक मैंने ढूंढा, मेरा अपना नाम नजर नहीं आया। आप भी ढूंढ लें, वेबसाइट है, मैं तमाम साफी दोस्तों को कहूँगा आप भी ढूंढ लें, मुझे नाम नजर नहीं आया। अब मेरा डेटा कहाँ से निकाला? मेरा डेटा मेरे इलेक्शन कमीशन के गोशवारों से निकाला गया, विच इज रॉन्ग। वो वैसे ऑलरेडी पब्लिक वो है प्रॉपर्टी है, आपको भी दे सकता है, लेकिन आपने एक लीक्स में एक वेबसाइट का सहारा लिया, एक नॉर्वेजियन कंपनी का जिक्र किया, उसमें मुझे अभी तक नजर नहीं आया नाम अपना, अभी तक आज दिन तक नजर नहीं आया नाम, और इन्होंने जो है वो वहां से निकाल के वो डाल दिया। फिर मैंने देखा कि जी 2 मीडिया पार्टनर थे ना, उसमें एक पार्टनर डॉन भी था, तो डॉन ने 2018 में मेरे गोशवारों से खबर छापी हुई है जो मैंने डिक्लेयर किया कि जी ये चीजें इन्होंने डिक्लेयर, तो खैर अब अफसोस की बात और कुछ नहीं कहा जा सकता, और एक तरीका बन जाता है, और उसमें काफी नाम नहीं है, और मुझे बड़ा अफसोस और परेशानी भी कि कुछ लोगों के घर पे मैं खुद खाना खा के आया हूँ दुबई में, बड़े बड़े, और एक नहीं है काफी लोग हैं, काफी मीडिया मालिकान है, उनके घर पे मैं खाना खा के आया हूँ, और एक दफा नहीं 10 दफा खा के आया हूँ, उनके नाम भी नहीं है, और काफी एक नहीं काफी है। तो खैर कोई बात नहीं, वो सियासतदान इजी फुटबॉल है, जिसको लात मारनी चाहे तो मतलब मार सकता है। जनरल का भी तो नाम आना चाहिए। नहीं खैर मैं ये नहीं बोला किसी का आना चाहिए किसी का नहीं आना चाहिए, मतलब मुझे ये ताज्जुब बड़ा हुआ कि जिनके घरों पे हम खाने खा के आए हैं, किनके घरों पे हम चाय पी के आए, किन घरों में कॉफियाँ पी के आए, उनका नाम भी आता है कि सिर्फ आपने एक मखसूस लोगों को टारगेट करके फिर उसका फुल मीडिया ट्रायल कर लें, फिर उसकी सोशल मीडिया पे उसके लिए बैशिंग स्टार्ट हो जाए, दिस इज नॉट गुड। पर एनी हाउ कोई बात नहीं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम अवाम को आंसरेबल है, एक चीज के आंसरेबल है। दूसरा आपका सवाल था बानी पीटीआई वाला, जी वो जो बानी पीटीआई है, वो जो बानी पीटीआई है वो लाडले हैं, लाडले, और मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूं कि ये कोई और बड़ा प्लान है। इमरान खान की गिरफ्तारी, इमरान खान, मैं शुरुआत करता हूं इमरान खान की लॉन्चिंग से लेके आज तक, ये मैं समझता हूं कि अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोई बहुत बड़े एक मास्टर प्लान कहीं पे ये तैयार हुआ है, उस मास्टर प्लान के फिर कभी कभी कोई किरदार हो सकता है कोई लोग बने हों। इमरान खान को जिस तरीके से इस शख्स को बाय नोइंग द फैक्ट एक सीट ये शख्स जितवाई गई, इसको
मरहूम परवेज मुशर्रफ साहब ने इसको एक सीट जितवाई जबरदस्ती, ताकि ये इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो। फिर इमरान खान परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में, एक डिक्टेटर के रेफरेंडम में उसको वोट करता है, उसको वोट देता है कि जी इसकी हिमायत करता हूं। एक डिक्टेटर की हिमायत एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कर रहा है। फिर उसके बाद फिर जो उसका लाहौर में जलसा होता है, अगेन बच्चे को पता है कि वो जलसे में लोग कहां से गए। फिर जलसे के बाद इसका धरना, पूरे पाकिस्तान को पता है 126 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान को चोक किया गया, और क्यों किया गया। और फिर उसमें आपके जो इंपॉर्टेंट फॉरेन विजिट्स थे उसकी वो कैंसिलेशन में आए, क्योंकि आपका पूरा जो कैपिटल है वो सीज किया गया था। फिर आपने पीटीवी पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, पुलिस वालों पे हमला किया, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। वो भी उसमें कोई ना कोई मददगार जरूर साबित था। फिर सोने पे सुहागा 2018 की बदतरीन धांधली, ये मेरे सारे लेफ्ट राइट पे कराची के जर्नलिस्ट बैठे हैं, सबसे हलफ लेकर ले लें कि क्या 2018 की इस बदतरीन धांधली में पीटीआई ये सीटें जीती थी। जबरदस्ती धांधली से, धोस से उसको जितवाया गया। और फिर उसके बीच में फिर जो इंकशाफात हुए वो भी किसी से छुपे हुए नहीं है, कि जिस तरीके से बाहर से फंडिंग की इसकी बातें आई कि भारत और इसराइल कौन, आज इसराइल के बारे में हम क्या बात करते हैं। इसराइल ने इस वक्त पूरी दुनिया में क्या एक अफरा तफरी मचाई हुई है। इसराइल ने मशरिक वस्ता में क्या अफरा तफरी मचाई हुई है। वो इसराइल इसको फंडिंग कर रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर क्या होता है, जब इमरान खान अरेस्ट भी होता है, मैं बीच में कुछ लिंक्स छोड़ गया हूं, जब इमरान खान अरेस्ट भी होता है तो वही इसराइल की असेंबली में होता है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसराइल बात कर रहा है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिसने फलस्तीनियों की, मजलूम फलस्तीनियों की, मासूम फलस्तीनियों की जो नस्ल कुशी कर रहा है, वो पाकिस्तान में इमरान खान के अरेस्ट होने पे बयान उनके नुमाइंदे का आ रहा है कि जी पाकिस्तान में जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही है। इससे बड़ा कोई आई ओपनर पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं हो सकता। अगर ना समझना चाहें तो आपकी मर्जी है, ना सुनना चाहें वो आपकी मर्जी है, ना देखना चाहें आपकी मर्जी है। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इमरान खान लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल फोर्सेस इन पाकिस्तान टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे आंच भी नहीं आने देंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। फिर उस तक कभी उसमें मैं इस्तेमाल हुआ हूं, उसकी मदद सहूलतकारी में, कभी कोई और उसकी सहूलतकारी में इस्तेमाल हुआ है, बट दिस इज द मास्टर प्लान, चाहे कोई इसको समझे या ना समझे। फिर अभी हमारे मौजूद सहाफी भाई ने सवाल किया कि जमानत भी हो गई। यार मैं एक सवाल पूछता हूं, आप भले उसको जमानत दे दें तो आज उसको रिहा कर दें। मैं एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ सिंध, एक सिंध सूबे का नुमाइंदा, सिंध सूबे के बासी की हैसियत से, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर के हैसियत से सवाल पूछता हूं, मुझे आसिफ अली जरदारी साहब के 14 साल का कौन हिसाब देगा? बगैर कन्विक्शन के, बगैर सबूत के, बगैर किसी कॉन्क्रीट चीज के 14 साल उस शख्स को आपने जेल में रखा। 14 साल क्यों रखा गया उसको 14 साल जेल में? उसका हिसाब कौन देगा? किसने उनको रिमांड देते गए? कौन कौन लोग थे वो लोग जो उनको रिमांड देते गए? कौन कौन लोग हैं जो उसकी, जब वकील हमारे खड़े होते थे तो उनकी बेल रिजेक्ट करते गए? कौन कौन लोग थे जो कि केस जिस स्पीड में इमरान खान के चलने वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के नहीं चलने दिए गए? कौन कौन वो लोग थे? कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमतें 2 दफा डिसॉल्व की गई, मोहतरमा गई इंसाफ के लिए, लेकिन वो दोनों दफा उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, गैर आईनी गैर कानूनी। कौन कौन वो लोग थे जो उसके सहूलतकार थे? कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने हमारे अजीम कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को अदालती कत्ल में मुलविस थे? कौन कौन वो लोग थे? वो ऑर्डर लिखने वाले कौन कौन लोग थे और उनके साथ क्या अशर किया गया? अभी तक उनके साथ क्यों सजा नहीं दी गई? चले मैं शुक्रगुजार हूं सुप्रीम कोर्ट का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं काजी फैसल साहब का कि उन्होंने कहा और उन मौजूद जज साहबान ने कहा कि जी फेयर ट्रायल नहीं मिला
शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, लेकिन नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिया उनके लिए क्या सजा सुनाई गई और उनके लिए सजा क्यों नहीं सुनाई गई, उनका ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, अगर जिंदा हैं तो ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, अगर जिंदा नहीं है तो भी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा, और आज दिन तक उनकी मराते उनकी औलादें क्यों ले रही हैं, यह सारा सवाल निशान बनता है। अदलिया की आजादी के लिए, अदलिया की मजबूती के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही है, खड़ी रहेगी, और जिदोजहदें भी हमने की, लेकिन जो नाइंसाफियां हैं उसको कौन देखेगा, क्यों नहीं। मैं तो आज अपील करता हूं, आज मैं इस आपके सवाल के जवाब में अपील करता हूं कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे शामिल हों, स्पीकर साहब बनाए, स्पीकर नेशनल असेंबली बनाए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, और वो प्रोब करे कि इस तरह के जिस तरह भी जातियां हुई हैं उनकी जो है तकाजे पूरे किए जाएं, कि उन लोगों को इंसाफ दिया जाए। फिर यह भी इंसाफ होना चाहिए कि जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी ने उस आला अदलिया की कुर्सी पर बैठकर जिस तरह कानून का तमस्खर उड़ाया, जिस तरह अपनी जाती हैसियत के लिए, अपने बेटे की अयाशियों के लिए, या जिस तरीके से भी इफ्तिखार चौधरी ने उस कुर्सी का नाजायज फायदा हुआ उसका फैसला किया जाए। जिस तरह साकिब निसार ने जज की शक्ल में एक बदमाश बनकर, अनफॉर्चुनेटली मुझे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये उनके एक्ट बदमाशी वाले थे कि जब अगर मैं ये समझूं कि मैं कानून की किताब को, आइन की किताब को नहीं कुछ समझता और सब कुछ समझता हूं, अपने आप को समझता हूं, तो जो साकिब निसार ने एज ए चीफ जस्टिस जो गलत काम किए, और उसकी मिसालें मैं 100 दफा दे चुका हूं, दोबारा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उसका एक एक इकदाम गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी था। उसने अस्पताल बंद करवा दिए, अपने दामादों के चक्कर में उसने लोगों की फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद करवा दी। डैम फंड के नाम पर जो उसने बदमाशी शुरू की कि 5 लाख रुपए एक यहां पे पीटीआई के इमरान खान की जो तो इंसाफ पार्टी थी, उसके एक एमपी ने एक गरीब आदमी को थप्पड़ मारा, बोला 5 लाख रुपए दे दीजिए, आपकी जान छूट गई, डैम फंड में जमा करा दो। ये कौन से कानून में लिखा है, कौन से आइन में लिखा है? मैं ओपन सवाल पूछता हूं। इस तरह के जितने इकदाम हैं, फिर बंदियाल साहब ने जो उनकी बैठ के अयाशी करवाई इमरान खान साहब की, जिस तरीके से आज हम बीआरटी पे खड़े ना, मैं कह रहा हूं करें प्रोब, केपी के बीआरटी 7 अरब रुपए केपी सीएम इंस्पेक्शन टीम कह रही है, और फिर उसको स्टेज किसने दिया? बंदियाल साहब ने दिया। फिर गुड टू सी यू किसने कहा उसको? फिर बंदियाल साहब ने किया। तो ये सारी चीजों की तहकीकात के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करे, क्योंकि इस मुल्क में सबसे बड़ा कोई इदारा है तो वो पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी कोई जगह है तो वो पार्लियामेंट है, क्योंकि वहां पे अवाम के नुमाइंदे, अवाम के चुने हुए नुमाइंदे इलेक्शन में वोट लेकर पहुंचते हैं। फैसला पार्लियामेंट करना चाहिए, क्योंकि मेरे आइन में, मेरे मुल्क के आइन में, मेरे पाकिस्तान के आइन में सबसे मजबूत अगर कोई किताब है, सबसे मजबूत कोई अगर मेरे कोई इदारा है तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट से बढ़कर कोई इस तरह का चीज नहीं। तो ये मेरा जाती ख्याल है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो कि साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी और बंदियाल साहब जैसे लोगों ने जो जो इस मुल्क के लिए किया है, और उन पे सारी चीजें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी और इमरान खान को लॉन्च करने के मास्टर प्लान का 2024 के इलेक्शन के बाद खुद पीपल्स पार्टी चाहती थी कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जाए, तो एक ऐसे मास्टर प्लान और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसी के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने। देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने कहा, कभी नहीं कहा कि हमने चाहा कि जी इमरान खान के साथ हुकूमत बनाए। हमने कहा कि जिस पार्टी से भी डायलॉग हो हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने आज भी कहा है कि हम डायलॉग किसी के लिए भी बंद नहीं करते। हमने ये भी कहा है, जब 9 मई का वाकया हुआ तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आप नेशनल असेंबली में खिताब सुनते, उन्होंने कहा कि इमरान खान और उसके लोग जो जो इस घिनौनी साजिश में 9 मई जैसे सानिया में मुलविस हैं, वो लोग माफी मांगे। और कल भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इनको माफी मांगनी पड़ेगी, इन्होंने ये अपनी तौबा करनी पड़ेगी, इन्होंने अपना कन्फेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप गन पॉइंट पे
स्टेटों को ब्लैकमेल करें, फिर तो आसान है ना कि कोई भी गुंडा जमा हो जाए, बंदूक लेकर आ जाए, हथियार लेके आ जाए, आपको बोले कि जी पूरा कानून मेरे लिए चेंज करो। आज क्या हो रहा है? आज वही हो रहा है। 9 मई को क्या था? 9 मई को ये ट्रेलर दिखाया था उन्होंने, और ट्रेलर के साथ उन्होंने पूरी फिल्म भी चलाई कि जी अगर इमरान खान, जो उनकी रेड लाइन थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, और इमरान खान को कुछ हुआ तो हम जो है वो मुल्क का ये सत्यानाश कर देंगे, हम इदारों के खिलाफ ये कर देंगे, हम ना बसें छोड़ेंगे, ना एम्बुलेंसें छोड़ेंगे, ना इदारों को छोड़ेंगे, ना शौदा को छोड़ेंगे, इस हद तक चले गए, ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरूम के उस घर को छोड़ेंगे। ये पैगाम उसने आपको दिया। तो अब अगर ऐसे गुंडे से, ऐसे बदमाश से, ऐसी टेररिस्ट सोच रखने वाले से अगर हम दब जाएं, या उसको हम उसके लिए खास रिलीफ दे दें, उसके लिए खास चांस हो, 6-7 महीने में मतलब उसको, उसकी बेलें भी हो रही है, सब कुछ चीजें हो रही हैं, भाई 22 महीने तो हम भी रखे आए, हमें तो इस तरह जमानत नहीं, हमें तो 4-4 महीने की तारीख मिलती थी, 4-4, 3-3 महीने की तारीखें मिलती थी। भाई क्या हो गया? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को 4-4, 3-3 महीने की तारीखें देते थे। क्या यह सजा याफ्ता शख्स के बस 2-4 महीने में बस जान छुड़वानी है? जमानतें हो रही, क्यों? कौन से इंसाफ के तहत? अगर आपको उसकी शक्ल अच्छी लगती है, अगर आपको वो स्मार्ट लगता है, अगर आप लोगों को वो गुड टू सी यू लगता है, इसका मकसद ये नहीं है कि फिर आप पहले फिर सबका हिसाब लें। आप जिसके साथ आपने ज्यादती की है पहले उसको इंसाफ दें, 14 साल मोहतरमा असलीज़ादा साहब के वापस लाएं, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वापस दें, हमें वो सारी चीजें हमें वापस दें, फिर आप ये लाडलापन हो सकता है। इस मुल्क में लाडलापन नहीं चल सकता। शफी साहब, सीएम साहब में इस बार जब आए तो वो दमखम भी नहीं है, कुछ दिनों तक बताया गया उसके नंबर भी बंद थे, तो पार्टी में कोई ऐसा है कुछ उनको तब्दील करना कोई चाह रहा है? किसी भी बात ये आपने कौन सा दम देख लिया भाई? और दूसरी बात ये कि उनका नंबर कभी बंद नहीं हुआ। ही इज वेरी एनर्जेटिक, बहुत पढ़ा लिखा, एक मैं समझता हूँ कि एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं पूरे पाकिस्तान का मवाजना करूँ तो सारे चीफ मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा डिलीवरेंस जो चीफ मिनिस्टर साहब ने दी है, उनकी पूरी टीम ने दी है। आप उसके लिए हॉस्पिटल्स देख लें, जो कि पूरे पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं। आप हर शोबे पे देखें जिस तरह सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि पूरा क्रेडिट चीफ मिनिस्टर साहब को जाता है। डेफिनेटली पार्टी की लीडरशिप की गाइडेंस है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया है डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू। ये बता दें शफी साहब कि सुना है कि गवर्नर सिंध भी पीपल्स पार्टी के आ रहे हैं, इस खबरों में कोई सदाकत है? खबरें जरूरी कब से? ये मेरे ख्याल से ये खबरें ज़्यादा चल रही हैं, और गवर्नर सिंह जो है अभी वो अपना काम कर रहे हैं, और काम करने दो उनको। थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं बस की तरफ, अगर आपने आना है तो